السلام علیکم۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ ریاست بہت جلد 24 اضلاع پر مشتمل ہوگی، وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی کا اعلان۔ سنگا ریڈی کی اوقافی جائیدادوں سے متعلق رپورٹ ایک ہفتے کے اندر حکومت کو پیش کرنے، عہدیداروں کو ہریش راؤ کی ہدایت۔ عازمین حج کی دوسری قسط کی ادائیگی کے لیے 19 جولائی آخری تاریخ۔ گرین زمرے کے لیے 1,10,000 اور عزیزیہ کے لیے 79,450 روپے مقرر۔ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ تلنگانہ کا نتیجہ 43.31 اور آندھرا کا 42.31%۔ اور تیلگو دیشم لیڈر ویرنا یادو کے قتل کے الزام میں 6 افراد زیر حراست۔ سوئٹزرلینڈ کا سونا دلانے کے بہانے دھوکہ دینے والے 3 عادی دھوکے باز گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے بتایا ہے کہ بہت جلد تلنگانہ ریاست 24 اضلاع پر مشتمل ہوگی۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ پولیس اسٹیشنز میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور انہیں عصری بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر پولیس کے بروقت پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ہریش راؤ نے سنگا ریڈی کی اوقافی جائیدادوں سے متعلق ایک ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ جمعے کو سنگا ریڈی کے دورے کے دوران اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی شکایات کا ہریش راؤ نے سخت نوٹ لیا اور کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کی پابند ہے اور ناجائز قابضین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونالا لکشمیا نے کہا ہے کہ تلنگانہ سے صنعتی شعبہ اور سرمایہ کی منتقلی سے 11,000 کروڑ روپے کی آمدنی کم ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونالا لکشمیا نے کہا کہ صنعتی شعبہ اور سرمایہ کاری کا اعتماد بحال کرنے کے لیے پارٹی سطح پر کام کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت کو بھی اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ پونالا لکشمیا کا کہنا تھا کہ کسی بھی مسئلے کی یکسوئی محتاط طریقے سے کی جائے تاکہ دیگر مزید مسائل پیدا نہ ہوں۔ پونالا لکشمیا نے کہا کہ سنہرا تلنگانہ کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا اس کے تحت ہی بنگارو تلنگانہ ویب سائٹ کا آغاز کیا جائے گا، جس میں سیاسی قائدین، دانشور اور سماج کا ہر فرد اپنے نظریات کو پیش کر سکتا ہے۔ پونالا لکشمیا نے گیل میں پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ రాజకీయ పక్షంగా పునర్నిర్మాణం అనేది తగదు, బంగారు తెలంగాణ నిర్మించుకుందామని మొట్టమొదటగా చెప్పింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। దానికి అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ముసాయిదా, ఎన్నికల ప్రచారంలో విస్తృతంగా బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణానికి కావాల్సిన కారణాలను పేర్కొన్నాం। అటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడతామని ప్రజలకు చెప్పాం। సరే, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు, అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ తెలంగాణ నిర్మాణానికి, బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణానికి పూనుకోవాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کو دوسری پارٹیوں کے قائدین کو راغب کرنے کے بجائے 2014-15 کے مرکزی ریل بجٹ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ کے زیر التوا ریلوے پروجیکٹس اور نئی ریلوے لائنز کے لیے منصوبہ تیار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے نمائندگی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی خطوط سے بالاتر ہو کر تلنگانہ کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو مرکز سے نمائندگی کرنی ہوگی۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ ایسے وقت
जब दिल्ली में रेल और आम बजट की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की लापरवाही बायस अफसोस है। అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ రైళ్ల మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ కావడానికి రైల్వే పరంగా ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ ఒక క్రమబద్ధీకరించుకొని మరి మొత్తం రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరు పార్లమెంట్ సభ్యులను తీసుకెళ్లి కేంద్ర మంత్రుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం జరగాలని आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गेल कंपनी के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन काउंसिल पद्मा राजू ने कहा कि कई कंपनियां आंध्र प्रदेश के वसाइल से सिर्फ मुनाफा हासिल कर रही हैं, लेकिन मकामी शहरियों और मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। पद्मा राजू ने वाक़े के महलूकीन को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और वरसा के किसी एक फ़र्द को मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया। ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించిన వ్యక్తులు కనీసం కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విషయంలో కూడా ఏ విధంగానూ శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు. ఎందుచేతనంటే ఈ గ్యాస్ రవాణా అయ్యేటువంటి ఆ పైప్ లైన్లు కూడా అనేక సంవత్సరాల నుంచి మరి ఆ మట్టి నేల కింద ఉండటం వల్ల అవి తుప్పు పట్టడం వల్ల ఈ విధమైనటువంటి మరి దుర్గతికి కారణం అవుతుందనేటువంటిది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. कांग्रेस के रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि गेल वाक़े की जिम्मेदार कंपनी खुद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में पेश आए वाक़यात के बावजूद कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। VHR ने बताया कि वो हफ्ते को मुतासरा मकाम का दौरा करेंगे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कायद अपोजिशन डी श्रीनिवास ने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने वाले अरकान काउंसिल के खिलाफ इंसदाद इनहराफ कानून के तहत कार्रवाई में ताख़ीर नहीं की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मसले को काउंसिल के सदरनशीन से रुजू करेंगे और अगर इस सिलसिले में इंसाफ नहीं किया गया तो मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाएगा। डी श्रीनिवास ने कहा कि TRS तरक्की और बहबूद को नज़रअंदाज करते हुए सियासत कर रही है। उन्होंने मजालिस मकामी के इंतखाबात के शफ़ाफ इनेकाद का रियासती इलेक्शन कमीशन और हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर M रवि ने कांग्रेस छोड़ने वाले अरकान काउंसिल की जानिब से गांधी भवन को दोज़ख के मुमासिल करार देने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए M रवि ने कांग्रेस छोड़ने वाले अरकान काउंसिल से कहा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी भवन से ही उन्हें B फॉर्म हासिल हुआ था। रवि ने KCR को मशवरा दिया कि वो ऐसे कायदीन से चौकस रहें जो वक्त के साथ अपना चोला बदलते हैं। उन्होंने कहा कि महबूब नगर, रंगारेड्डी और वरंगल में ZPTC पर कब्जा करने के लिए तेलुगु देशम से मुफाहमत पर गौर किया जा रहा है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शुकूर ने रियासत के मुंतखबा आज़मीन से दूसरी किस्त की रकम 19 जुलाई तक जमा करा देने की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर शुकूर ने बताया कि रियासत के लिए 5380 का कोटा मुख्तस किया गया, जिनमें से महफूज ज़ुमरे के तहत 1476 आज़मीन को बग़ैर क़ुरे के मुंतखब करार दिया जा चुका है। क़ुरे के ज़रिए 3904 का इंतखाब हुआ। तमाम मुंतखबा आज़मीन ने अपनी पहली किस्त जमा करा दी है और दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 19 जुलाई मुकर्रर की गई है। ग्रीन ज़ुमरे के लिए दूसरी किस्त की रकम 1,10,200 रुपये और अजीज़िया ज़ुमरे के लिए दूसरी किस्त की रकम 79,450 रुपये है। महरम के तौर पर जाने वालों को करीब 31,000 रुपये ज़ायद अदा करने पड़ेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट की तारीख आ चुकी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट की तारीख 19 जुलाई आखिरी तारीख है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने की। ग्रीन कैटेगरी में सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 1,10,200 रुपये का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,000 पे कर चुके हैं। जुमला जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो 1,91,200 का बनता है। अब ग्रीन कैटेगरी वालों को सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,10,200 का सेकंड इंस्टॉलमेंट 19 जुलाई से कबल दाखिल करना है। उसी तरीके से अदीदिया का सेकंड इंस्टॉलमेंट 97,450 रुपये है और जुमला ये इंस्टॉलमेंट अदीदिया का बनता है 1,60,000
450 रुपये, जिसमें से 81,000 का पहला इंस्टॉलमेंट दाखिल कर चुके थे आजमीन। अब अदीदिया वालों को 79,450 का इंस्टॉलमेंट दाखिल करना है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने राजीव गांधी एयरपोर्ट का दौरा किया और रमज़ान मुबारक के दौरान एयरपोर्ट के अहाते में नमाज़ों और इबादत के लिए खुसूसी इंतज़ामात के सिलसिले में दौरा किया और एयरपोर्ट ओहदेदारों और महकमे अक़लियती बहबूद के ज़िम्मेदारों से कामयाब नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी माह मुबारक के दौरान वाटर प्रूफ शामियाना लगवाया जाएगा और पानी की सहूलत के अलावा इफ्तार के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। पीने के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम सिर्फ इफ्तार के वक्त की यहाँ पर लोग बताए उसकी ज़रूरत है। हमारे शमशाबाद के MPTC के नजम साहब जो जिम्मेदारी लिए कि वो MPTC के मेंबर है वो उनका अरेंजमेंट करेंगे इफ्तार के टाइम पे ठंडे पानी का इंतज़ाम पीने के लिए। बाकी पूरे इंतज़ामात इत्मीनान बख्श हैं। इंशाअल्लाह कल अगर चांद हो जाए तो कल से ही इंतज़ामात का आगाज़ होगा। किसी किस्म की तकलीफ़ नमाजियों को रोज़दारों को नहीं होगी। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर के WBM और यहाँ पे GMR के ज़िम्मेदार का भरत साहब का हमारे सत्यनारायण साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा की तरह अभी भी ताउन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हम नंबर दे चुके किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो वो हमसे रब पैदा करें, वो उनकी जो भी तकलीफ़ है हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इसके साथ साथ हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर साल की तरह इस साल भी तमाम रोज़दारों को सहूलत के लिए यहाँ पर इंतज़ामात कर रहे हैं नमाज के लिए। इंशाअल्लाह इससे लोग इस्तेफ़ादा करेंगे और यहाँ के लोग कसरत से रोज़े रखते हुए इबादत करेंगे और ये मुकाम से फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दरामदात में तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में चौथा मुकाम हासिल है। खानगी होटल में IT कंपनियों के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए और IT शोबे से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में IT शोबे की तरक्की पर जो असर पड़ा है उसकी वजह सिर्फ तेलंगाना तहरीक नहीं है बल्कि हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान राब्ते में कमी वाक़ हुई है और आलमी मंदी का भी इस पर असर पड़ा है। इंटरमीडिएट साले दुव्वम के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल G श्रीनिवास राव ने अलहदा तौर पर आंध्रा और तेलंगाना के नताइज जारी किए। तेलंगाना के वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद नहीं थे जबकि उन्हें नताइज की इजराई के प्रोग्राम में शिरकत करनी थी। तेलंगाना का मजमूई नतीजा 43.31 और आंध्र प्रदेश का 42.31% रहा। दोनों रियासतों में लड़कियों ने लड़कों पर सबकत बरकरार रखी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर G श्रीनिवास राव ने कहा कि तलबा नताइज के मुशाहिदे के लिए यूज़र ID में अपना हॉल टिकट नंबर और पासवर्ड दर्ज करते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर सेंटर के कोड का इंतराज भी करें। श्रीनिवास राव ने बताया कि 3 जुलाई तक मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स मुतल्लिका कॉलेजेस को रवाना कर दिए जाएंगे। पर्चों की दोबारा जांच के लिए 3 जुलाई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। श्रीनिवास राव ने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आंध्राई तलबा की फ़ीस बाज अदायगी न करने के फ़ैसले को बायस अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि आंध्रा हुकूमत अपने तलबा के साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2 महीने के अंदर दोनों रियासतों के इंटरमीडिएट बोर्ड्स अलहदा हो जाएंगे। तेलुगु देशम ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आंध्राई तलबा की फ़ीस बाज अदायगी न करने के फ़ैसले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर G मुद्दुकृष्णम नायडू ने कहा कि दीगर रियासतों में गैर मकामी अफराद को 6 महीनों में राशन कार्ड्स और 2 साल में अमकिना के पट्टे दे दिए जाते हैं, लेकिन तेलंगाना की तरक्की और आमदनी में इजाफे के लिए काम करने वालों के बच्चों को फ़ीस अदायगी से महरूम कर देना नाइंसाफ़ी है। मुद्दुकृष्णम नायडू ने कहा कि मुल्की रूल्स के तहत तेलंगाना में पैदा होने वाले और साल से तालीम हासिल करने वाले तेलंगाना के साकिन ही तस्वुर किए जाते हैं और उन्हें फ़ीस बाज अदायगी की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि अमेरिका में गैर मकामी शहरियों की औलाद को वहाँ पैदाइश पर ही तमाम सहूलतें फराहम की जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तलबा के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी माहिरीन तालीम और ज़िम्मेदार ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मलकपेट में सरकारी स्कूल्स के इंतज़ामात और सर्व शिक्षा अभियान और राजीव विद्या मिशन की खिदमत का जायज़ा लिया। उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा स्कूल्स की तफसीलात हासिल की और नाकाफ़ी सहूलतें रखने वाले स्कूल्स के लिए MLA बजट से फंड्स फराहम करने का तयक़ुन दिया। गुरुकुल ट्रस्ट की अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किए जाने के बाद GHMC हुक्काम ने तकरीबन 6 गैर मजाज तामीरात को ताला लगा दिया। कमिश्नर बल्दियात सोमेश कुमार और साइबराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। इस मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि गैर मजाज तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन इमारतों को बरक़ी के अलावा पानी की सरबराही भी मजदूद कर दी जाएगी। शहर में बार बार बरक़ी मजदूदी से अवाम परेशान है। दिन के औक़ात में अक्सर कई इलाक़ों में बरक़ी मजदूद हो रही है। जब बरक़ी दफातर से राब्ते की कोशिश की जाती है तो उन दफातर के टेलीफोन नंबर्स या तो मसरूफ़ होते हैं या फिर कोई जवाब देने वाला नहीं होता। दफ्तर के अंदर लापरवाह बरक़ी हुक्काम बाहर भी लापरवाही नज़र आते हैं। शहर के कई इलाक़ों बशमूल शमशीरगंज में दिन के औक़ात में कई घंटों तक स्ट्रीट लाइट्स खुली नज़र आ रही हैं। हुकूमत को बरक़ी अमले को भी जवाबदेह बनाना चाहिए। अवाम की सहूलत के लिए मामूर बरक़ी मुलाजिमीन को ज़िम्मेदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर करना होगा, वरना ये लोग अपनी गफलत का मुजाहरा करते रहेंगे और अवाम बरक़ी बहरान की वजह से तकालीफ का सामना करते रहेंगे। शहर की एक फलाही तंजीम की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक की आमद और पिराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत के मौके पर ग़िज़ाई अजनास तक़सीम किए गए। मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली याक़ूतपुरा मुमताज़ अहमद ख़ान के हाथों फ़ीकस 10 किलो चावल और तेल के पैकेट्स ज़रूरतमंदों में तक़सीम किए गए। इस मौके पर रुकन बलदिया वाजिद अली ख़ान भी मौजूद थे। मियाँपुर पुलिस गुज़िश्ता हफ्ते हुए TDP लीडर वीर अन्ना यादव के कत्ल के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ACP साई मनोहर ने मीडिया को बताया कि मकतूल वीरन्ना यादव और गोपाल कृष्णा दोनों मिलकर रियल एस्टेट का कारोबार किया करते थे। गोपाल कृष्णा ने बदनीयती से काम लेते हुए वीरन्ना यादव को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया ताकि सारा कारोबार हड़प किया जा सके। पुलिस ने इस सिलसिले में आरिफ, खलील, जाफ़र, सल्लू राजू और गोपाल कृष्णा को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। चादरघाट पुलिस ने 3 आदी धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तिरुपिता वेंकट सत्यनारायणा और श्रीनू ने वेंकट रेड्डी नामी शख्स को सस्ती कीमत पर स्विट्जरलैंड का सोना दिलाने के बहाने 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि कर्नूल के साकिन वेंकट रेड्डी नामी शख्स को वेंकट सत्यनारायणा उर्फ गोपी रेड्डी ने कई बार सस्ती कीमत पर सोना दिलाने का लालच दिया, लेकिन उसने उसकी पेशकश ठुकरा दी थी। 23 जून को गोपी रेड्डी ने एक बार फिर ये पेशकश की कि 1.5 किलो सोना वो 30 लाख रुपए में दिलाएगा। वेंकट रेड्डी जब 30 लाख रुपए लेकर हैदराबाद पहुंचे तो मलकपेट में वाक़ भवानी लॉज में गोपी रेड्डी उससे मिलने के लिए आया। फिर अपने एक साथी को लॉज में बुलाया। शातिर गोपी रेड्डी ने पहले वेंकट रेड्डी से कहा कि वो रकम देखना चाहता है, जिस पर वेंकट रेड्डी ने रकम से भरा बैग उसके हवाले कर दिया। रकम गिनने के दौरान तवज्जो हटाकर गोपी रेड्डी और उसके साथी ने रकम तब्दील कर दी और सिर्फ काले कागजात के ऊपर चंद असली नोट रखकर बैग में वापस रख दिया और ये कहकर वापस हो गए कि वो जल्द ही सोना लेकर आएंगे। जब वेंकट रेड्डी ने बैग की तलाशी ली तो इसमें सिर्फ काले कागज पाए गए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद तहकीकात करते हुए पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 30 लाख रुपए की नकद रकम, 2 गाड़ियां, काले कागजात के 30 बंडल, 5 बैग्स और 4 सेलफोन्स बरामद कर लिए गए। बंजारा हिल्स पुलिस ने तिलाई चेन उड़ाने के इल्जाम में 2 रहजनों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके मलकपेट के रहने वाले 19 साला शेख सिराज और आगापुरे के रहने वाले 19 साला शेख सैफ उर्फ शेख अब्दुल बादशाह को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि ये दोनों आगापुरे के एक स्कूल के तालिब इल्म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता जून और अगस्त के महीनों में बंजारा हिल्स के इलाके में रहजनी की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 तिलाई जंजीरें और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना रियासत बहुत जल्द 24 अजला पर मुश्तमिल होगी, वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। संगारेड्डी की औकाफी जायदादों से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर हुकूमत को पेश करने ओहदेदारों को हरीश राव की हिदायत। आज़मीन हज की दूसरी किस्त की अदायगी के लिए 19 जुलाई आखिरी तारीख। ग्रीन जुमरे के लिए 1,10,000 और अजीजिया के लिए 79,450 रुपये मुकर्रर। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज का ऐलान। तेलंगाना का नतीजा 43.31 और आंध्रा का 42.31%। और तेलुगु देशम लीडर वीरन्ना यादव के कत्ल के इल्जाम में 6 अफराद जेर हिरासत। स्विट्जरलैंड का सोना दिलाने के बहाने धोखा देने वाले 3 आदी धोखेबाज गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।